Hello children, today we will discuss, we will start our lecture from 1830s, which means from the year 1830 to 1848. Actually 1830s means 1830 to 40, but we are discussing from 1830 to 1848. How was the situation of Europe from 1830 to 48? As given in the slide, population was increasing. As population was increasing, job seekers were greater than employment because earlier people used to do their work in rural areas. Now there was lot of migration from rural to urban areas, means people were shifting from rural to urban areas. What was the reason behind it? Reason was industrialization. As industrialization taken place, due to this, those people who used to work in villages in small workshops in their home, family members used to sit together, used to produce for the world market. Now these workshops were closed, and as a result they need to shift to the urban areas. And most important thing was the industrialization has taken place in England much before than other European countries. So as a result, what happened? Cheap machine good made goods started coming from England to other European countries like France, Germany, which was not formed yet. In France, Germany, and other countries of Europe, machine made goods started giving stiff competition to the home made goods. आज भी क्या था, एरिस्टोक्रेट्स जो कि लैंडलॉर्ड या रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे, स्टिल दे वेयर हैविंग प्रिविलेज. Privilege means that they were having special advantage. What type of special advantage? That they were collecting feudal dues. It means कि वो लोग आज भी peasant से यानी कि serfs से feudal dues यानी खुद feudal lord होने का जो advantage था, land के मालिक होने का जो advantage था, still they were taking. यानी यूरोप में so many revolution taken place. In spite of it, these aristocrats were taking their advantage in spite of these revolutions. आज भी उनके पास उतना ही पावर था जो कि रिवॉल्यूशन से पहले उनके पास जितना पावर था. तो इट मीन्स यूरोप वॉज हैविंग ग्रेट हार्डशिप, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, rural people were migrating towards urban areas. As a result, urban area was overcrowded. One more problem was created by England, as it was supplying cheap machine made goods, and as a result there was lot of hardships. क्योंकि क्या हुआ कि चीप मशीन मेड गुड्स के आने से जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज थे, विच वॉज सेटअप, विच वॉज इन इट्स इन्फेंट स्टेज, नाउ दे वेयर फेसिंग प्रॉब्लम. तो ऐसे कंडीशन में कुछ नए नए कंट्रीज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो दैट वी विल सी. नाउ यू कैन सी द हियर द मैप ऑफ यूरोप. हियर यू कैन सी फ्रांस, जर्मनी. यू कैन सी हियर जर्मनी, फ्रांस. तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट जर्मनी in this lecture, and proceeding lecture we will basically talk about Germany, how Germany was formed and what was the reason of German unification. तुम लोग बहुत बार we have discussed that when France sneezes the whole Europe catches cold. In 1848 Europe, the poor, unemployed workers and starving peasants led many revolts. In France, educated middle class too started a revolution for the abolition of monarchy and establishment of a republic based on universal male suffrage. इट मीन्स कि फ्रांस में तो रिवॉल्यूशन पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार अगेन सिचुएशन लेड टू रिवॉल्यूशन. तुम लोग देख ही चुके हो कि जब भी फ्रांस में ब्रेड की स्कैरसिटी होती थी वहाँ रिवॉल्यूशन होता था. तो फ्रांस में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एज अ रिज़ल्ट पीपल केम इन द रोड एंड मोनार्क ऑफ फ्रांस वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज पोजिशन. और कौन थे उस समय फ्रांस के मोनार्क? तो उनका नाम था लुइस फिलिप.
लुइस फिलिप जो है वो किसी तरह अपने आप को बचा करके उन्हें भागना पड़ा एंड एज अ रिज़ल्ट फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। जो कि क्या होता था, फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता था, राइट टू वोट यूज टू बी गिवन, लेकिन जो भी राजा होते थे दे यूज टू टेक बैक दिस राइट टू वोट। तो again republican government was formed which granted suffrage to all the adult males above 21 and guaranteed right to work. नेशनल वर्कशॉप को सेटअप किया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो इट मीन्स फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ना ही था अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो दैट वी विल सी that what was the impact of French Revolution on other countries of Europe, especially we are talking about Germany because after that we will read about unification of Germany. Now you can see here this is the famous Frankfurt Parliament. This is the famous Frankfurt Parliament which we will discuss in the later slide. So first of all, what was Frankfurt Parliament and how it was a step towards German unification. फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर है और फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ कि व्हेन फ्रांस हैड अ रिवॉल्यूशन तो जर्मनी के जो एडुकेटेड क्लास थे, जो मिडिल क्लास थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जैसे कि प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस, दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच विल बी मेड ऑन देयर ओन कंसेंट। ऐसी सरकार हो जो कि उनकी सुने और साथ ही साथ दे गेव राइट टू वोट to those people who were the propertied section of society. So 831 representatives from all over Germany, because at that time it was actually not Germany, it was divided into 39 small states. So these 39 states elected 831 representatives and these representatives came in the city Frankfurt and where they sit, where they held their meetings, that was the Church of St. Paul. They sat in Church of St. Paul on 18 May 1848 and in this church they decided to have a monarchical form of government, but such type of monarchy which will be checked by a constitution, that is called कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी वो लोग ऐसी सरकार बनाएंगे जहाँ राजा तो होंगे लेकिन राजा के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेक करेगी। इट मीन्स कि राजा के साइड बाय साइड एक रूल बुक तैयार होगा जो कि राजा के पावर्स और फंक्शंस को डिफाइन करेगी। तो अब क्या था कि एज जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स, तो अब ये डिसीज़न लेना बहुत डिफ़िकल्ट था कि इन 39 में से कौन से किंग को ओवरऑल जर्मनी का किंग बनाया जाए। तो उस समय क्या था कि अमंग दीज 39 स्टेट्स ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया वाज मोस्ट पावरफुल। दे डिसाइडेड टू गिव दिस पोजीशन टू प्रूसिया क्योंकि प्रूसिया के जो राजा थे और प्रूसिया की जो जनता थी वो लिबरल्स थे। लिबरल्स जनरली मिडिल क्लास के लोग थे, हायर मिडिल क्लास के लोग थे। व्हाट लिबरल्स वांटेड? Liberals wanted government of their own consent. Liberals wanted to give right to vote to whom? To the propertied section of the society. And liberals also wanted that there should be freedom of press, there should be freedom of opinion, there should be freedom of association. So these will prevail only then when a liberal king will be given that position. So due to this they proposed to give that position to King Wilhelm IV, who was the Prussian king at that time. The Frankfurt Parliament was a very good step towards German unification. In spite of it, this Frankfurt Parliament finally failed. Why it failed? Because it was dominated by the middle classes. It lost its mass support base. In the end, it was forced to disband. क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को तो मिडिल क्लास के लोगों ने बनाया था, वो भी हायर क्लास के मिडिल क्लास के लोगों ने।
इट मीन्स कि जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, उनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने साथ में नहीं लिया। तो एज अ रिजल्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड एंड इवन द मोनार्क्स, जो कि 39 स्टेट्स के 39 मोनार्क्स थे, इवन दे वे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके पावर को कर्टेल किया जाए। तो एज अ रिजल्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फाइनली failed. So now we will see that as Frankfurt Parliament failed, then what happened then. So before proceeding, we will see one more step, which was actually an step for German unification. Now this is Zollverein. Actually Zollverein was formed in 1834. अभी हम लोग बात कर रहे थे 1848 की, लेकिन ज़ोल्वेरिन तो उससे पहले बना था। और ज़ोल्वेरिन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था टू यूनिफाई जर्मनी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के यूनिफिकेशन में कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है या हमारी जो इकोनॉमी है वो यूनाइटेड हो। यानी इकोनॉमी इज़ ऑल्सो अ वे टू यूनिफाई अ नेशन, एंड दैट वाज प्रूव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरिन कि इकोनॉमी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप प्ले कर सकती है इन यूनिफिकेशन ऑफ एनी कंट्री। तो ज़ोल्वेरिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ? तो व्हाट वी हैव सीन अर्लियर कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ। एज अ रिजल्ट चीप मशीन मेड गुड्स स्टार्टेड कमिंग इन यूरोप, एंड अगेन एज अ रिजल्ट दैट क्रिएटेड स्टिफ कंपटीशन फॉर अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पोलैंड, रसिया. तो these created lots of problem for these countries. But we are generally talking about Germany basically. 1833 के जर्मनी का कंडीशन क्या था? बहुत ही बुरा था कि एक मर्चेंट जो है अगर वो ट्रैवल करता था फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, और अगर वो चाहता कि वो अपने गुड्स को सेल करे, तो ही नीड टू पास 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5%. और ड्यूटी जो है वो हमेशा वेट्स और मेज़रमेंट ये भी चेंज होती रहती थी. वेट्स एंड मेज़रमेंट वाज आल्सो नॉट फिक्स्ड. जैसे कि मेज़र ऑफ क्लोथ जो है अगर एक रीजन में अगर 1 एली है तो इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू, जैसे वन एग्जांपल इज गिवन है कि फ्रैंकफर्ट में अगर कोई मर्चेंट, फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है, वहाँ अगर किसी क्लोथ का मेज़रमेंट 54.7 सेंटीमीटर है, तो मेंस विच इज़ ऑल्सो इन जर्मनी, तो वहाँ उसका जो मेज़रमेंट है वो घट जाएगा 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में बढ़ जाएगा 65.6 सेंटीमीटर, तो अगेन इन अदर प्लेसेस 53.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स कि इट वाज क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न. अगर मर्चेंट इतने सारे कस्टम ड्यूटी ही पे करते रहेंगे तो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस. तो दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय ज़ोल्वेरिन इन 1834. ज़ोल्वेरिन ने क्या किया कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ थी, जो कि और करेंसी का जो सर्कुलेशन था 30 टाइप ऑफ करेंसीज, इसे रिड्यूस करके ज़ोल्वेरिन ने 30 से 2 कर दिया. इट मीन्स कि ज़ोल्वेरिन had solved all type of economic difficulties which was prevailing among the merchants of that time, and it was a very good initiative to unify Germany later. क्योंकि ज़ोल्वेरिन ने एक तरह से लोगों को यूनिफाई किया. अब लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करने लगे. पहले क्या था कि कनेक्शन नहीं था लोगों में, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड फीलिंग देमसेल्फ कनेक्टेड, क्योंकि रेलवे नेटवर्क आया, लोग साथ में बैठते थे, डिस्कस करते थे. एंड एज यू हैव सीन अर्लियर, रोमांटिसिज्म तो था ही, क्योंकि पोइट्स थे, बहुत सारे राइटर्स थे. दे स्टार्टेड राइटिंग मेनी थिंग्स अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो ऐसे में जब रेलवेज़ आया, लोग रेलवे नेटवर्क का लोगों ने यूज़ किया, तो एज अ रिजल्ट दे फेल्ट देमसेल्फ क्वाइट कनेक्टेड. तो इट मीन्स ज़ोल्वेरिन वाज अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव टू यूनिफाई जर्मनी. तो टुडे I will not continue to the next topic, that is the unification of Germany. That will be continued in the next video. So go through it and give your feedback. Okay, bye and God bless you all.